Okay. Can everybody hear me? Hello. Can you hear me? Hi Chinmay, yes, we can hear you. Okay, so I think everybody can hear me, correct? Most probably. Yes, yes. Everything's working fine. Okay, so hello to everybody, and as I expected, like 5 or 6 or 7 people will join. Like
at max. So okay, so this is like my first this online session, or we can call it like demo session for the future LinkedIn sessions. Okay, and it's on business Japanese. So we'll try to wrap it in like 40 minutes, and उसके बाद भी अगर थोड़ा कुछ रह जाता है content, तो I'll send link again, so you can join basically. Okay, so okay. This I just want to share like one thought, like knowing 1500 vocabularies or having N1 and 2 and not be able to speak Japanese using 100 of them is just waste of time, I think. And then we have dictionaries to keep 15,000 words in it for sure, and we have brain to understand how to speak Japanese using just 200 of them. So I think it's better to have like N5 and speaking good Japanese rather than having N1 and 2 not be able to speak at all. So nobody can or should judge your language as skill by the number of vocabularies you know. Usually people do it in India basically. The number of vocabularies you know, like the good you are in language. That's not true, I think. Basically, I'm a native Hindi speaker, but I don't know each and everything in Hindi. Just so I can speak fluently, but true. So I just need to like memorize the necessary words in order to speak whatever I want to speak if I don't know the words. Okay. So the last but not the least, I'm not the smartest person for sure here, but I just try to share what I know regarding Japanese, not any other thing. About me currently, I'm working as a Japanese language trainer with some companies and many people from Japan and India. And basically I like to share what I know in Japanese, the Japanese culture, the work culture, business Japanese, normal Japanese, like day-to-day life Japanese. After that, I'm a programmer. I did my like computer science engineering, so I do write code sometimes. Right now, I'm working on a very big side project which will help you to learn business Japanese for sure in a very easy way. Like right now, there is no any platform online where you can go and you can learn business Japanese and you can find things. So I'm working on that soon. Basically, we will start that. And like in past, I worked in Japan in a very mid-sized Japanese, like full-fledged Japanese e-commerce company. And now I'm in India, Rajasthan, Jaipur, and I'm planning to like go back to Japan soon. Basically, that's the plan. So today, अभी हिंदी इंग्लिश दोनों में चले तो better है, क्योंकि I will upload it on YouTube. So I want कि जिनको इंग्लिश मेरी तरह जिनको इंग्लिश नहीं आती, they can also watch basically. Okay. So I think if nobody is here like from South India, so anybody can speak Hindi. Like सब हिंदी में बात कर सकते हैं ना basically. Yes. Yes, yes, yes. Okay. of Most course. people can speak in Hindi now. Yes, Srinivas. Better है, चलेगा. Okay. टाइम लिमिट भी की 40 मिनट्स, क्योंकि जूम का फ्री वर्जन तो 40 मिनट्स का होता है, और अगर ज्यादा एक्सटेंड होता है तो आई सेंड द लिंक अगेन. आई विल क्रिएट अ न्यू लिंक एंड हम ज्वाइन कर सकते हैं बेसिकली उसको. कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिकली बिजनेस जापानीज. सो उनमें से कुछ टॉपिक्स मैंने लिए हैं एंड वी विल टॉक अबाउट इट. फर्स्ट द वेरी जनरल, लाइक व्हाट इज इट, लाइक द टर्म बिजनेस जापानीज. एंड so let's start with this, like what is business Japanese. Any one of you, if you have any experience, or if you like, according to you, what is like business Japanese? When we say business Japanese, तो क्या like क्या समझ आता है कि क्या है business Japanese, और how we use, when to use, क्यों use करनी है, कब use करनी है, कैसे करनी है. Anybody of you, किसी को भी अगर बताना है, then please go ahead. उसके बाद I will share like what I know about it. Anybody? Business Japanese is formal, wherein you use it with your clients, with all your customers, and Okay. it is the most polite form of the language. Okay. Yes, you use lot of keigo. Basically, therein you will use lot of keigo, son keigo as well as kenjogo. Okay. Yeah. Okay. Good. Anybody else? इसके अलावा कोई और? Any experience in this with this term? It's simple. Basically, the जैसा इसका नाम है business Japanese, like we mostly use it in business, we can say. Correct? क्या किसी को और कोई definition पता है?
किसी को भी, एक लाइन में या 2 लाइन में, कुछ भी डेफिनेशन पता है? ओके, क्या हम बिजनेस जापानीज को यूज कर सकते हैं टू टॉक कैजुअली, फ्रेंड से बात करने में और फैमिली बात करने में? डू वी यूज बिजनेस जापानीज और शुड वी? No, No. not with friends. No. अगेन नो, अगेन। सो जापानीज लैंग्वेज में क्या कोई टर्म होती है बिजनेस जापानीज जैसी? व्हाट डू यू थिंक? I don't think we have a business Japanese term in Japanese. We just use it as a polite language, like to talk to customers, to the clients in business situations, not with friends and not with families. ओके, तो अगर बिजनेस जापानीज टर्म नहीं होती जापानीज में तो क्या होती है? देन व्हाट वी कॉल इट? कुछ तो होता होगा फॉर श्योर, जिसकी वजह से बिजनेस जापानीज हुआ डर है, तो वो ओरिजिनल टर्म क्या है? Keigo. क्या करें, इट्स खेगो बेसिकली। सो और खेगो का इंग्लिश वर्जन क्या होता है? कॉल इज ऑनरिफिक्स जापानीज, Type form. ऑनरिफिक्स जापानीज, ऑनरिफिक्स। एंड फॉर्मल का जापानीज नाम क्या होता है? इट्स थेइनीगो। नहीं। So we अक्सर do mistake with we say कि okay business Japanese is formal Japanese. Yeah, of course it's formal, but it's like one step ahead. ये एक step और ज़्यादा polite है than formal. So we call it Keigo. Keigo is honorific Japanese, not Theinego. Theinego खुद Keigo का एक सब part है, सब point basically. So Keigo में होती तीन चीजें और तीन categories we can say. One is Theinego, one we call Kinjogo, and that is Sonkeigo. Main focus in दोनों पे होता है, Kinjogo and Sonkeigo. Theinego we use in day-to-day life with strangers, with family, sometimes with friends, to give respect, to make requests. Okay, so basically business Japanese or Keigo is a type of language, type of Japanese language which जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं सिर्फ बिजनेस सीन में, बिजनेस सिचुएशन में, बिजनेस राइटिंग में, बिजनेस डॉक्यूमेंट में, इसलिए इसको ओवर द टाइम दे कॉल इट बिजनेस जापानीज। अदरवाइज कोई टर्म नहीं है बिजनेस जापानीज जैसा बेसिकली, यू विल सर्च इन डिक्शनरी। सो इट्स लाइक उसको काताकाना में वी कैन से बिजनेस निहोंगो, सो निहोंगो इज जापानीज एंड बिजनेस इज द काताकाना बिजनेस। So Keigo, so बहुत सिंपल है बेसिकली, the sentence, the patterns, the vocabularies, the request making pattern, the permission seeking patterns जो कि हम business scene में ज़्यादा use करते हैं, we call it business Japanese. And let's talk about like how important this is. Okay, can anybody know कि क्या ज़रूरत है business Japanese की? क्या अगर if we don't know business Japanese, so can we work or we cannot work basically? What do you think? If you don't know it, then can you work? No, we can't. because we need to gain the trust of the client or your customer, Okay. and we need Keigo so that he or she feels respected. He or she can trust the other person. Okay. So according to you, so like to gain the trust, we need Keigo, maybe. Or maybe it's like ये एक part है इसका कि ठीक है, इससे we can also gain trust. Maybe, correct? Yes. If you will talk like with respect. Okay. But the thing is, this is their Hmm. corporate culture. They use it in their in corporate. Correct. ठीक है, अगर इंडिया की बात ना करें तो क्या जापान में like we can work without business Japanese? Like बिल्कुल भी नहीं आती, like आता ही नहीं, कुछ भी नहीं आता। No. Theinego आती है but business नहीं आती। Then You can work, but not in corporates. yeah, you can work but not in like full-fledged Japanese company जहाँ पे basically आपको black suit और white shirt पहन के जाना होता है जो हम usually देखते हैं। और you can't work in any like small size company जहाँ पे Japanese का इतना रोल नहीं है, like language का इतना issue है ही नहीं, वहाँ we can work with Theinego. But the mid-size or the like large companies we cannot work at all. They will not allow. और अगर काम customer interaction का है तो बिल्कुल भी नहीं। तो like they will not allow us to interact with the customer. Customer से interact करने को नहीं allow करेंगे for sure, क्योंकि ये उनका work culture है। they value the customer बहुत ज़्यादा, बहुत politely, बहुत ज़्यादा तरीके से बात करते हैं। In India we say that customer is our भगवान, but there they believe in it. They just don't say it, they believe in it.
और यू कैन सी किसी भी छोटी सी शॉप में भी, सुपरमार्केट में, स्टोर में जाके भी यू कैन फील इट कि हाउ लाइक दे स्पीक केगो. नेटिव है कोई तो वो केगो बोलेगा, फॉरेनर है तो चलेगा कुछ भी. ओके, सो फर्स्ट ईयर ऑफ कोर्स वी कैन नॉट वर्क. ठीक है, इन जापान में तो ऑफ कोर्स वी कैन नॉट वर्क. इन इंडिया में वी कैन वर्क. आफ्टर एंट्री लोगों को जॉब मिल जाती है फॉर श्योर, और केगो नहीं आती तो भी जॉब मिल जाती है. क्या कोई बता सकता है क्यों? मतलब फिर तो जरूरत ही नहीं है ना. M3 है, जॉब भी मिल गई, केगो नहीं आता फिर भी, तो क्या जॉब होती है, कैसी होती है, और उसका क्या फायदा है? कैन एनीबॉडी टेल मी? क्योंकि आई वुड लाइक यू टू मेक यू टू स्पीक बेसिकली. मेरे को तो जो पता है आई विल शेयर एज इट इज, तो उससे कुछ ज्यादा प्रॉफिट होने नहीं वाला. M3 है, केगो नहीं आता फिर भी जॉब मिल जाता है. आई नो मैन कर रहे हैं काम. क्योंकि इंडिया में जो जॉब्स होती हैं वहाँ पे केगो भी बहुत कम यूज होती है. ओके, मे बी Depend लाइक on job. Amazon, राइट? Yes, कि वो अगर I उन्हें कोई believe. चाहिए, सॉरी गो अहेड. जी जी सॉरी. एक्चुअली मुझको जो लगता है कि इंडिया में ज्यादातर जो वर्क है यहाँ पे, देयर आर मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो मैंने खुद से फील करा है, लाइक इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वी आर नॉट यूजिंग केगो. Most of the time we are using the Nichijo Kaiwa, the rude language sometimes. So इसलिए मुझको लगता है कि N3 होने के बाद भी लोगों को यहाँ पर जल्दी से काम मिल जाता है. Actually, as a foreigner, the Japanese, they don't expect us to speak Keigo. But if we do speak Keigo, they definitely are impressed. And for starters, like when I got my job after doing N3, I got on the job training with respect to Keigo. Of course, I'm still learning Keigo, but yeah, so I got on the job training. ओके Yes, ओके. yes. सो ठीक है, रीजन है कि M3 है, केगो नहीं आता तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जॉब मिल जाता है. ओके, बट इंडस्ट्री तो और भी है. ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर आपको नेटिव जापानीज से इंटरेक्ट नहीं करना है तो इट्स फाइन. अगर आप किसी इंडियन कंपनी में काम कर रहे हो जो कि जापानीज क्लाइंट के लिए काम करती है, वहां जॉब नहीं मिलेगी आपको फर्स्ट. या M3 और केगो नहीं आएगी तो, और मिल भी जाएगी तो वहां पे फिर आपका काम जो जापानीज का काम होता है वो बेसिकली फिर ऐसे होगा, लाइक कम होगा बेसिकली. आपका इंग्लिश या नॉर्मल में काम ज्यादा होगा लैंग्वेज में, जापानीज में बहुत कम होगा. या फिर आपको क्लाइंट से इंटरेक्ट करने, मतलब मैं सारे पॉइंट कर रहा हूँ, वो क्लाइंट से इंटरेक्ट नहीं करने को मिलेगा मे बी, और आपको राइटिंग पार्ट में नहीं मिलेगा मे बी, इंटरप्रिटेशन ट्रांसलेशन में भी ज्यादा नहीं मिले. ऐसा लाइक ये बेसिकली ऐसा होता है कि अगर इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक केगो और राइट केगो, लिखना या बोलना नहीं आता है तो ठीक है. ठीक है, जॉब तो नहीं मिल जाती इजीली. तो कैन यू टेल मी द अनदर रीजन कि जिसको N3 में अभी लाइक इसका N3 पास होके केगो नहीं आके और स्पीकिंग भी अच्छी ना होके जॉब मिल गया, क्या रीजन है कि आफ्टर 5 इयर्स भी ग्रोथ नहीं होती, वो वहीं रहती है जहाँ पे थी, मतलब जहाँ पे पसंद था 5 साल पहले वो वहीं है आज भी, और हल्का सा स्लाइटली हुआ है इम्प्रूव. क्या रीजन है इसका? कैन यू थिंक? हम जापान जा ही नहीं पाते अपनी जॉब के बेसिस पे, हम इंडिया में ही रहते हैं. दिल्ली से हटके हम पुणे आ जाएंगे, पुणे से हटके साउथ इंडिया, वापस दिल्ली, हम जापान नहीं जाएंगे. क्या कोई रीजन है इसका? मतलब कुछ तो होगा ऑफ कोर्स. व्हाट डू यू थिंक? रीजन यही है कि स्पीकिंग नहीं होती कंपनीज में. ओके, एंड राइट, और बिजनेस जापानीज तो बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, ओके, सो यही रीजन है. और मुझको यस यस प्लीज. I think reason ki when you are not speaking and when you after the learning Japanese, when you are not practicing and on the way and not daily practicing, so main reason is that you are not practicing daily Japanese. ओके ओके, या दैट इज ट्रू. बेसिकली अगर आपके वर्क में जापानीज ही नहीं है तो आप डेली यूज कैसे करोगे? ठीक है, so that is true. ठीक है, मैंने because sir, growth needs daily practice and daily usage, daily vocab, verbs and kanjis.
That's why, sir. Okay, that's true. So उसका एक रीजन ये भी है कि आफ्टर एंट्री वी स्टॉप लर्निंग समहाउ, सबकॉन्शियसली आपको कॉन्शियसली हमको लगता है कि वी आर लर्निंग, बट सबकॉन्शियसली वी स्टॉप लर्निंग. उसका रीजन ये कि हमको जॉब मिल जाती है, सो वी बिकम सेटिस्फाइड. गुड, ठीक है. हमको बोलनी नहीं आती तब भी हमको जॉब मिल गई, हमको कहीं को नहीं तब भी जॉब मिल गई. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम खुद तो सीखते नहीं है, और हम ये कह भी देते हैं कि मिल जाती है एंट्री के बाद तो कोई इशू है नहीं, ठीक है. तो ग्रोथ नहीं होती क्योंकि हम कहीं को कभी सीखते नहीं है, तो हमको इंटरप्रिटेशन कभी नहीं मिलता. और खासकर जो आपका नेटिव, अगर आपकी कंपनी नेटिव क्लाइंट के साथ वर्क करती है तो आपको इंटरप्रिटेशन के लिए कभी भेजेंगे नहीं फॉर श्योर, क्योंकि इंडिया में मोस्ट ऑफ द टाइम जब उनको N4 का वर्क चाहिए होता है, N4 लेवल की स्पीकिंग, देन दे आस्क फॉर N1 विद एक्सपीरियंस और N2. ये सच है, क्योंकि उनको पता है इफ यू आस्क फॉर N2 देन वी विल गेट N4 लेवल स्पीकिंग. सो इसलिए जितने लोगों को मैं जानता हूँ जो वर्किंग, उनसे बहुत कम ऐसे हैं जो कि क्लाइंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं, और उनकी भी जैपनीज समहाउ ब्रोकन है, उतनी अच्छी नहीं है. सो बहुत बड़ा रीजन हमारा ये होता है कि हम लैंग्वेज वाइज ग्रो नहीं करते, तो हमारे जो इनकम है और जो लैंग्वेज में ग्रोथ है वो नहीं बढ़ती, जापान नहीं जाते. जितने लोग जापान में काम करते हैं उनकी सबकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है ऐसा जरूरी नहीं है, बट जिनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है उनके बाकी बेनिफिट्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं. सो मेरे ओपिनियन में बिजनेस जापानीज सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है इन ऑर्डर टू ग्रो, नॉट इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब. वो तो मिल जाएगी, करेक्ट. और बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बिजनेस जापानीज की वजह से बहुत सारे इंटरव्यू फेल किए हैं. मैं जानता हूँ ऐसे बहुत से लोगों को, शायद आप भी जानते होंगे, या मे बी एक्सपीरियंस भी हो, ठीक है. तो ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह के काम में हैं. अगर आपका काम ऐसा है जहाँ पे आपको रोज ईमेल लिखने पड़ते हैं या ईमेल पढ़ने पड़ते हैं, तो आपको आनी चाहिए बिजनेस जापानीज. क्योंकि ठीक है आपको नहीं आती तो आप तो थेइनेगो में लिख लोगे, ठीक है, क्योंकि यू आर बाउंड टू राइट इन थेइनेगो, कि आपको तो आती नहीं है ना, तो थेइनेगो इज फाइन. बट जो अदर सामने जो नेटिव पर्सन है वो तो बाउंड नहीं है ना थेइनेगो में लिखने के लिए, तो वो तो अपना वर्क कल्चर फॉलो करके आपको बिजनेस जापानीज में लिखेगा ईमेल, ठीक है. जब आपको लिखना नहीं आता तो फिर आपको पढ़ना भी नहीं आता. तो यहाँ पे इश्यूज बहुत सारे होते हैं क्रिएट. देन वी टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स, और हम ग्रो नहीं करते. जॉब भी जा सकती है कई बार, इंडिया में तो भी ना जाए, बट जापान में अगर ऐसी सिचुएशन है तो चली जाती है नौकरी, ठीक है. तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है बिजनेस जापानीज की. मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू ग्रो. अगेन आई एम सेइंग इन ऑर्डर टू ग्रो. जिनको आती है राइटिंग और स्पीकिंग, उनके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं, और जिनको नहीं आती उनको हमको पता है बेसिकली, ठीक है. सो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डे टू डे लाइफ. सिंपल है. After learning your N4, N5, you can speak your day-to-day like Japanese. Almost every kind of situation you can convey. ये N4, N5 ही चाहिए इसके लिए, ज़्यादा नहीं चाहिए इस पॉइंट के लिए. नॉर्मल जापानीज में डे टू डे लाइफ जापानीज, ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ सिचुएशन यू कैन कन्वे समहाउ, क्योंकि N4 में इतनी ज़्यादा ग्रामर्स हैं, वो N5 के साथ मिलकर आपको ऑलमोस्ट हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रेडी कर देंगे. तो आप गो थ्रू कर जाओगे सिचुएशन से. तो इट्स डिफरेंट बिकॉज बिजनेस जापानीज में जस्ट टू मेक ए सिंपल रिक्वेस्ट बहुत सारे वेज होते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. टू से सॉरी, अगेन बहुत सारे वेज होते हैं टू से सॉरी, नॉट लाइक इन लाइक इंग्लिश में सॉरी इज जस्ट सॉरी, अपॉलॉजी हम बोल देते हैं, थोड़ा सा एक वर्ड एक स्टेप ऊपर वाला वर्ड. बट इन जापानीज में सिचुएशन के हिसाब से वी नीड टू से सॉरी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. की सिचुएशन क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है. कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इफ यू आर लर्निंग जापानीज. लाइक मेरे अकॉर्डिंग कॉन्टेक्स्ट पे ही सब कुछ डिपेंड होता है. आप किस पर्सन से बात कर रहे हैं, उसका पोजीशन क्या है, आपके साथ रिलेशनशिप क्या है, इंटरपर्सनशिप रिलेशनशिप क्या है आपका, उसके हिसाब से यू आर बाउंड टू यूज द सेट फ्रेजेस और द सेट वोकैबुलरी. ऐसा नहीं होता बिजनेस जापानीज में. अगर ये ग्राफ है पोलाइटनेस का और यहाँ पे पोलाइटनेस है, तो ऐसा नहीं होता कि आपका जब मन किया आप यू बी सुपर पोलाइट, जब मन किया like less polite or casual. You need to maintain it. Sometimes you need to be super polite with the same person, or sometimes you need to be less polite. So यहाँ पे तो हो गया थेइनेगो basically, ये हो गया खेइगो, और ये हो गया casual Japanese. So you need to vary depending on the situation, even writing, even speaking, because इसमें दो categories define होती है basically, 3 categories. एक होती है internal document और internal खेइगो basically. You can to simplify it, I can say कि जो हम इन हाउस इन ऑफिस में यूज करते हैं वो खेइगो, तो इंटरनल, वो लेस पोलाइट होती है. थेइनेगो से ज्यादा पोलाइट होती है,
बट जो जापानीज वी यूज फॉर द क्लाइंट उससे लेस पोलाइट होती है, बिकॉज वी आर टॉकिंग विद द कलीग्स में। तो यहाँ पे एक होती है जो हम सोशल डॉक्यूमेंट्स या गैदरिंग्स या इंटरेक्शन या क्लाइंट इंटरेक्शन यूज करते हैं, दैट इज Keigo, दैट इज सुपर पोलाइट। सो यू आर बाउंड टू यूज Keigo विद क्लाइंट, और यू शुड यूज थोड़ी लेस पोलाइट internally, and then Keigo is simple. You are not allowed to use this casual unless you are not like buddy of your colleague. So this will not help you, or you are not allowed to write email or report or any document, or you are not allowed to use the Japanese with client. They might get angry for sure. Most of the time emails की reply ही नहीं आते, उसका reason होता है कि we use this, और ये सच है, नहीं आते रिप्लाई बहुत बार, ठीक है। तो इस आई विल नॉट से कि टोटली डिफरेंट, बट बहुत ज्यादा डिफरेंट है। वो कैसे है यू विल सी विद द एग्जांपल्स अभी आगे इसी सेशन में बेसिकली। ओके, तो ठीक है, इसमें कुछ कहना है या बताना है या पूछना है? इफ यू वांट टू शेयर समथिंग यू कैन। जो मैंने बोला उसमें कुछ ऐड करना खुद से। Okay, ठीक है। Most probably everybody knows what is passive and causative, correct? Right. Japanese language में सबको सॉरी, अच्छा इंग्लिश में सबको पता है, जापानीज में पता है? Hi, Sensei. ओके, कोई भी बता सकता है एक लाइन में और 2 लाइन में कि पैसिव और कॉजेटिव को कब, क्यों, कैसे यूज करना है? They're extremely important. क्यों यूज करना है पैसिव और कॉजेटिव, बता सकता है कोई भी? ट्राई। Sir, I think I may be wrong, but totally fine. We are here to be wrong. अभी तो सही सीखेंगे। I think this we are like suppose that someone is a 8-hour superior and doing some work, so I want to do that work, so I can say watashi ni yarasete kudasai, let to do that work. ओके, तो ये पॉजिटिव I think sir जो आपने बोला वो पॉजिटिव हो गया। ओके, देन पैसिव। पैसिव और सर आई थिंक पैसिव और नॉन ट्रांजिटिव वर्ब सब सेम ही होते हैं। पैसिव एंड नॉन ट्रांजिटिव मतलब हो गया इंट्रांजिटिव, तो इंट्रांजिटिव और पैसिव सेम होते हैं। ओके, या एंड कंटिन्यू। पॉजिटिव होता है लेट मी और ये मेड मी डू दैट, या ये बताने के लिए, और पैसिव काफी चीजों के लिए यूज होता है। जैसे पैसिव एक तो केंजुको में भी यूज होता है, एक टू उसमें भी यूज होता है, क्या कहते हैं, तातेरारे मास्ता, ये डेवलप हुआ था इस टाइम। इन सारी चीजों के लिए भी यूज होता है वो पैसिव। ओके, बट कोई लाइक क्लियर कॉन्क्रीट लाइन की, ओके ये लाइन में आपको बता देता हूँ ये है पैसिव की, इसके बाद यू कैन यूज पैसिव, या एटलीस्ट वन यूज ऑफ पैसिव, ये ऐसे होता है, ये कॉन्क्रीट है बेसिकली, ये फिक्स्ड है। क्यों से ओके, वन थिंग दैट मे बी मोस्ट ऑफ द लाइक जितने भी यहाँ पे लोग पार्टिसिपेंट्स हैं वो मोस्ट ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, सो आई विल बी शेयरिंग न्यू लिंक जस्ट आफ्टर 10 मिनट्स, क्योंकि ये लंबा चलेगा, तो प्लीज ज्वाइन अगेन। ओके, पैसिव इज, हाँ ये कौन बोल रहा था, क्या होता है पैसिव? इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर बोथ कैजुअल जापानीज एंड बिजनेस जापानीज, बहुत ज्यादा है ये, है बेसिकली इंपॉर्टेंट है। बताएं आप, एनीबॉडी एल्स? पैसिव इज लाइक जैसे ताबेरारे मास। ओके, ये तो ये बेसिकली कॉन्जुगेशन हो गया, वर्ब टू ईट का कॉन्जुगेशन हो गया, जो आपने बोला ताबेरारे मास। ओके ओके ओके, बट क्यों? चलो
सॉरी इसका अभी नहीं आ रहा है एग्जांपल. it's totally fine. नहीं आना भी good है, आना भी good है. नानिका गेनिंदे इयाना किमोची ओ सुतायरू तो भाई नानिका गेनिंदे इयाना किमोची ओ सुतायरू तो की उकेमी दोशी ओ सुकाएमास. Okay, so okay, and Pradeep said passive has many uses, and I also believe passive at least 2-3 uses तो हैं, 3 तो हैं basically, at least 2-3 हैं. और क्या? कभी बार वो पैसिव तो रिग्रेट के लिए भी यूज होता है. Okay, good one. रिग्रेट के लिए होता है और एंगर के लिए भी होता है क्या? हो सकता है. एंगर के लिए होता है, इवेंट्स के लिए होता है मेनली. काईगी जैसे सेटअप किया और उसमें केंजोगो में होता है और formal language में भी यूज होता है वो तो. Okay, so basically when we use honorific Japanese we can use passive to basically to perform some tasks ना. वो क्या करते हैं वो नहीं पता but use कर सकते हैं basically. I mean अगर मैं इसको बीच में रोकूं. Okay, ठीक है. So okay, and causative you said कि make me to let me do or make me do. Okay, can we say कि I'll make you to do this or I made him to do something? Can we say with causative? वो तो शेगी केमी के साथ बोल सकते हैं. जैसे something like positive. Because positive Oh, sentences are like when someone else. Positive sentences are like when आगे मास. नहीं वो शेगी ओकेमी आ जाती है ना वो तो फिर. Okay, शेगी ओकेमी causative passive correct. यस. पॉजिटिव पैसिव होता है कि बेसिकली ओके पॉजिटिव पैसिव को कंबाइन करने से पहले पैसिव क्या होता है? पैसिव इज बेसिकली अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ पैसिव देन पॉजिटिव देन देयर इज पॉजिटिव पैसिव. पॉजिटिव पैसिव में मैं बता देता हूँ. पॉजिटिव पैसिव ये होता है कि लाइक यू आर कन्वेइंग दैट ओके हर्षिता वन सेकंड. यस हर्षिता प्लीज. actually I have learned that positive verbs are like causative are that when someone else forces us to do something. Correct. Okay. Shukudayo yara saseru. Kuno peno motte koko ni ikasaseru. Ikaseru. Okay. Okay. And goya o tabesaseru. Taberu, something drop like the that. ru at saseru, tabesaseru, tabesaseta, tabesasemashita, tabesasete. Okay. Okay, so ठीक है. अगर मैं बात करूं पैसिव की तो पैसिव वर्ब्स बेसिकली देयर मेनी यूसेज डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट. पहली बात तो ये मोस्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन जो जापानीज के होते हैं मेरे उसमें आई यूज वर्ड कॉन्टेक्स्ट क्योंकि जापानीज इज ऑल अबाउट कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है सब कुछ चेंज हो जाता है. द ग्रामर वोकैबुलरी पोलाइटनेस एवरीथिंग इज चेंज बेस्ड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट. हम किससे बात कर रहे हैं क्या बात कर रहे हैं किस तरह की बात कर रहे हैं क्योंकि जापानी में वी डोंट कन्वे वर्ड्स वी कन्वे फीलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम. मोस्ट ऑफ द ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन गलत इसलिए होते हैं नॉन नेटिव पीपल के. नॉन नेटिव जो होते हैं पर्सन लाइक मैं हूँ लाइक मैं जापानीज नहीं हूँ तो लोगों की एनालिसिस नहीं करते कि दे कन्वे वर्ड्स. इफ आई वांट टू ट्रांसलेट आई लाइक टू शेयर माय नॉलेज सो हम क्या करेंगे वी विल फाइंड वर्ड फॉर आई देन लाइक देन टू देन शेयर देन माइंड देन नॉलेज एंड वी विल ट्रांसलेट इट. जबकि इसकी जरूरत नहीं. ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि बहुत अननेचुरल साउंड करता है हमारा ट्रांसलेशन. बहुत ज्यादा अननेचुरल क्योंकि we try to convey words not feeling and Japanese is not about to convey the words or translating the words. ये कोई कहता नहीं है बड़ी सच है. We need to convey feeling क्योंकि यही वजह है if you will notice कि बहुत सारी ग्रामर है. इंग्लिश में इतनी ग्रामर नहीं है शायद हिंदी में बट जापानी में बहुत सारी ग्रामर है. वो इसलिए तो है क्योंकि they have like they made it for each and every possible situation. अगर आप सिर्फ एक सिंपल टॉपिक पे if you are talking to like 5-year-old kid 10 year then 20 year old adult 60-year-old
like a senior person, 80 years old company's president. So एक टॉपिक को इन 5 या 6 लोगों से कहने के लिए 5 या 6 से ज्यादा तरीके हैं, तो इसलिए हैं क्योंकि we can use them, क्योंकि we can convey feeling properly. इसलिए सेम सेंटेंस N4 N5 का सेंटेंस हम N2 की ग्रामर को यूज करके कहते हैं टू बी मोर प्रिसाइज, मोर करेक्ट. और ये हमको नहीं फील होता या हमको नहीं पता होता, इसलिए हमारी स्पीकिंग हमेशा N4 N5 लेवल की ही रहती है, और राइटिंग तो बहुत ज्यादा. और जापानीज में राइटिंग इज हार्डर देन स्पीकिंग. राइटिंग मुश्किल है, जापानीज सेंटेंस स्ट्रक्चर सच में बहुत मुश्किल है. मतलब उसको नेचुरली साउंड करवाना बहुत मुश्किल है. लिखना मुश्किल नहीं है, नेचुरली साउंड करवाना मुश्किल है. तो नेचुरल नहीं साउंड करता. हमने कितना भी अच्छा लिखा हो, कोई भी नेटिव जिसको अच्छे से जापानीज आती हो, मतलब जापानीज आती मतलब वो लाइक वेल एजुकेटेड जापानीज, क्योंकि इंडिया में भी बहुत लोग है ना जो वेल एजुकेटेड नहीं बट उनको हिंदी आती है, तो वो हिंदी में फ्लुएंट है. इसका मतलब ये नहीं है कि उनको सब कुछ पता है. तो सेम लोग जापान में भी होते हैं. तो वो नेटिव है मतलब इन्हें वो सब कुछ आता है, नेटिव है बट वेल एजुकेटेड है, सो दे कैन करेक्ट योर सेंटेंस चाहे आपने कितना भी अच्छा लिखा. वो इसलिए होता है क्योंकि दे कन्वे फीलिंग्स और वी कन्वे वर्ड्स. तो पैसिव इज वी यूज टू शो रिग्रेट based upon the context. We use to show anger based upon the context. We use to put more focus, to more contrast on the event, like what happened and to whom it happened, ना कि किसने किया. तो सब्जेक्ट पे फोकस कम होता है, लाइक द नॉर्मल सब्जेक्ट में, नॉर्मल सेंटेंस में सब्जेक्ट पे फोकस ज्यादा होता है, सब्जेक्ट पहले आता है. पैसिव में सब्जेक्ट ने क्या किया है उस पर फोकस ज्यादा होगा, किसके साथ हुआ है उस पर फोकस होगा. तो जब पैसिव यूज करते हैं तो वी आर इनडायरेक्टली वी वांट अदर पर्सन टू पुट फोकस ऑन आवर लाइक अस बेसिकली. अगर कुछ हुआ है हमारे साथ तो, या फिर इवेंट पे, ना कि किसने किया उस पे. लाइक टीचर ने मुझ पे गुस्सा किया, तो यहाँ पे जो फीलिंग यू वांट टू कन्वे कि मुझ पे गुस्सा किया, दैट आई वांट टू कन्वे इन मेन स्ट्रीम. टीचर ने किया वो बात की बात है, बट तो मुझ पे किया तो यू आर एम्फसाइजिंग योर फीलिंग, इसलिए पैसिव यूज करते हैं. इससे पैसिव ज्यादा होता है. और पैसिव यूज करते हैं एज सोंकेगो, नॉट केंजोगो. प्रदीप सेट केंजोगो, तो उसका ये रिवर्स है, वी यूज इट इन सोंकेगो. तो केगो में देयर इज अ कैटेगरी सोंकेगो, देयर वी यूज पैसिव टू गिव रिस्पेक्ट टू द अदर पर्सन. उसका रीजन ये है क्यों करते हैं पैसिव, अगेन क्योंकि पैसिव इज इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग कि किसी ने कुछ किया मुझ पे. तो सेम इन सोंकेगो और केगो वी ट्राई आवर बेस्ट टू नॉट टू पुट एनी लाइक सब्जेक्टिव पार्ट. और बेसिकली हम ये नहीं शो करते कि सामने वाला पर्सन कुछ कर रहा है या उसने एक्शन कुछ किया है. व्हाट वी ट्राई टू कन्वे कि लाइक वी आर रिसीविंग फेवर और वी आर टेकिंग हिज एक्शन और वी आर वी आर ग्लैड दैट यू डिड समथिंग. तो वी जस्ट से इनडायरेक्टली वी से कि यू आर डूइंग समथिंग, नॉट डायरेक्टली. वी यूज पैसिव. तो ये इसके मेन स्ट्रीम पे यूज है. Causative is not just like restricted till कि let me do something. इसका नॉर्मल यूज होता है, नॉर्मल यूज लाइक वर्ब है थाबिरु बिकम थाबिसासिरु. ठीक है, थाबिरु में से रू को ड्रॉप करेंगे, एट सासिरु बिकम थाबिसासिरु. इसका जो बेसिक वेरी बेसिक यूज है वो है कि आई मेक यू डू समथिंग एंड आई एम गोइंग टू सेंड लिंक अगेन इन 1 minute. सो लाइक आई विल मेक यू डू समथिंग और आई विल लेट यू टू डू समथिंग. अगर इसको अब इसको कहना है कि ना लेट मी डू समथिंग, तो इसको चेंज करना पड़ेगा. यू कांट से विद अ नॉर्मल कम्युनिकेशन. थाबिसासिरु विल नॉट allow you to say कि okay let me do something, let me eat something. उसके लिए you need to combine it with some other verbs. तो एक नई